ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی اس کے درجے ہیں ایمان کے۔ سب سے اوپر جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بغیر تو ایمان نہیں ہے، یہ نمبر 1 پر ہے۔ اور اس کے بعد بہت زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے آخر میں فرمایا سب سے آخری شاخ ایمان کی وہ راستے سے کسی تکلیف پہنچانے والی چیز کو اٹھا کر کنارے لگا دینا، یہ ایمان کی شاخ ہے۔ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف پہنچانے والی چیز، کیلے کا چھلکا، لکڑی کی ڈالی یا کوئی پتھر یا کوئی اور چیز، یہ کیوں اٹھا کے کنارے پر لگانا ایمان کا جز قرار دیا؟ پیچھے آنے والے کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ پیچھے آنے والا وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہمارے نبی نے نہیں فرمایا کہ پیچھے آنے والے مسلمان ہو تب آپ یہ پڑی ہوئی چیز کو لگائے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا پیچھے چاہے کسی بھی مذہب کا آنے والا ہو، اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیز وہ ہٹا دینا، وہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں گندگی نہ کرو، پیشاب نہ کرو۔ پہلے زمانے میں جنگلوں میں جایا کرتے تھے تو جنگل میں بھی اس جگہ کا انتخاب کرو جہاں لوگ چلتے پھرتے نہ ہو۔ اگر چلنے پھرنے والی جگہ میں آپ گندگی کر دیں گے، پیچھے آنے والی کو گندگی لگ جائے گی تو تکلیف پہنچے گی۔ تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا 5 وقتہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، دین پر عمل کر لینا، مسجد سے گھر تک دوڑ لگا لینا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ یقیناً یہ اسلام ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے لوگوں کو تکلیف سے بچانا، راحت پہنچانا، نفع پہنچانا اور نفع پہنچانے والے کاموں کو انجام دینا، یہ ایمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کام اگر ہم الگ الگ کریں گے تو قوت تقسیم ہوگی، کام میں مضبوطی نہیں آئے گی۔ ایک جماعت بنا کر کے کریں گے تو اس کام میں استحکام ہوگا، مضبوطی ہوگی۔ یہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی، ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے، نوجوانوں کے ساتھ مل کر آپ نے ایک تنظیم بنائی۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں کو ظلم سے روکنا، قافلوں کی حفاظت کرنا، ضرورت مندوں کی خبرگیری کرنا۔ یہ کام اللہ کے نبی نے میدان میں، عملی میدان میں آنے کے ساتھ ہی یہ کام شروع کیا۔ ہمارے لیے بھی یہ کام ضروری ہے اور اس کے لیے جمعیت علماء مضبوط جماعت وہ تعلقے میں قائم ہے، بہت سارے اضلاع میں تعلقے کے نیچے گاؤں میں بھی قائم ہے، تعلقے کے اوپر ضلع میں قائم ہے، ضلع کے اوپر صوبے میں قائم ہے، صوبے کے اوپر ملک میں قائم ہے۔ ایک چین ہے پوری اور پورے ملک میں کام کر رہی ہے، اور کتنے کام کر رہی ہے آپ کو ابھی موقع نہیں ہے ہمیں بتانے کا۔ مکاتب، پورے ملک میں مکاتب کا جال پھیلایا ہوا ہے۔ کالجوں میں پڑھنے والے کے لیے جو آفیشل کورسز کرتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کا نظام، بیواؤں یتیموں کو ماہانہ پنشن کا نظام شرح کا کام کر رہی ہے۔
जमीयत यूथ क्लब चला रही है, नौजवानों को जोड़ करके फिजिकली मेंटली उनको मजबूत कर रही है। जमीयत ओपन स्कूल का निज़ाम कायम कर रखी है जी। इसके बेशुमार काम है माशाअल्लाह। जिला बीदर में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। बसवा कलियान में जमीयत उलमा की उठान बहुत शानदार थी। पता नहीं नजर लगी किसी की, और नजर बद का शिकार हो जाते हैं लोग जी। उसके लिए अमल करना पड़ता है, नजर बद से बचने के लिए। अल्लाह के नबी ने मुस्तकीम दुआ सिखलाई है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्ली शैतानिन व हाम्मतिन व ऐनिल लाम्मा। और सूरह कलम की आखिरी आयत व इन यकादुल्लज़ीना कफरू, इसमें मुफीद है। आदमी काम करता है, नजर बद का शिकार हो जाता है। जब मफाद होता है तो काम में रुकावटें पैदा होती है। काम में इखलास चाहिए, इखलास के बगैर काम नहीं होता है। और काम करने वाला आगे बढ़ता है। काम करने वालों को पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे देखना है। हम जो है अगर अल्लाह काम ले रहा है तो उससे अजर लेंगे। हम दुनिया वाले हमें देंगे क्या? क्या दे सकते हैं? वो खुद मुहताज हो। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, सबके सब फकीर हैं। वल्लाहु हुवल गनी, तन्हा अल्लाह की जात गनी है। अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं, दाता नहीं, अल्लाह की एक जात है। भाई इस बसवा कलियान में एक तो हमारे अपने भाई हैं, इन भाइयों के अंदर मजहबी कमजोरियां, इन मजहबी कमजोरियों को दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है। मुसलमानों में इर्तिदाद है, यानी मजहब से बेदारगी शुरू हो गई है। बहुत सारे लड़के और लड़कियां गैरों के साथ चले जा रहे हैं। नशा आम होता जा रहा है, बेहयाई आम है, बेकारी, जिसे देखो मोबाइल लेके दुकान पे बैठा है, बेकरी के बाहर बैठा है, अजान हो रही है, इकामत हो रही है, मोबाइल नहीं छूट रहा है जी। ये सारी खराबियां, फजूल खर्ची, शादियों में, तकारीब में, ये सब हमारी अंदरूनी कमजोरियां हैं। इसे हमें दूर करना है। मुल्क में एक तबका जो है फिरका परस्ती का जहर बोल रहा है, हमारे खिलाफ पूरी आबादी एक तरफ हो रही है। उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें मोहब्बत का पैगाम बांटना है। हमें अपने बोल से, अपने अमल से, अपनी तिजारत से, अपने सलूक से, अपने ताल्लुकात से गैरों के तबके को करीब करना और हमें उनके करीब जाना है। ये सारा काम जमीयत उलमा करती है। और इत्तेफाक से मौलाना खलील साहब जी बसवा कलियान में वो रफ्तार जो उठान में थी नहीं है साहब। हालांकि इस वक्त हमारे लिए बहुत सख्त जरूर, हमारा अगर आप बसवा कलियान में सारी मसाजिद के जिम्मेदारान बैठे, एक नतीजे पर आए, अइम्मा खुतबा जुड़े, वो सब मिलकर के एक नतीजे पर आए, कॉलेज में डिग्री करने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों को जोड़े, ज़हन साजी करें, नौजवानों को जोड़े, जज्बात को कंट्रोल करने का फन उनको सिखलाएं। ये सब काम हमें करना है, जमीयत उलमा को करना है। हमें बहुत उम्मीद है बसवा कलियान से। काम की उठान बहुत अच्छी थी, नजरे बद का शिकार है तो उस पर जो है मंत्र पढ़े, फूके, नजरे बद को दूर करे, दोबारा एक मर्तबा खड़े हो और पूरी कुव्वत के साथ खड़े हो, आगे पीछे न देखें। हमारे यहाँ जो है काम करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। हमें अल्लाह के नबी ने फरमाया मल्लम युअक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्नी। यही शायद अल्फाज आगे पीछे हो जाए। जो अपने बड़ों का इकराम नहीं करता, छोटों पर शफकत नहीं करता, वो हमारी जमात में से नहीं। हमें बड़ों का अदब करना है, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे इल्म में बड़ा हो,
चाहे होते हुए बड़ा हो, बड़ा बड़ा है जी, बड़े का अदब करना चाहिए, छोटे पर शफकत करना चाहिए, हर एक को साथ लेना चाहिए, मिलजुल करके काम करना चाहिए, इख्तिलाफ को जगह नहीं देना चाहिए। मुल्क में 75 साल हो गए मुल्क को आजाद हो करके, आज भी हम खानों में बैठे रहेंगे अपनी अना के लिए, अपने नफा के लिए। हालात ऐसे नहीं है, अभी मुल्क के भी मिल्लत के भी मुल्क के हालात भी खराब हैं, मिल्लत के लिए भी हालात खराब है। तो मुल्क भी हमारा हम इसे खराब होने नहीं देंगे, हम मुल्क को उजड़ने नहीं देंगे। हमने एक मर्तबा कुर्बानी दी है मुल्क की आजादी के लिए, जरूरत पड़ेगी फिर देंगे जानों की कुर्बानी, मुल्क की हिफाजत करेंगे, मिल्लत की भी हिफाजत करेंगे, इस मुल्क में जिंदगी गुजारेंगे अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ, इसी दाढ़ी टोपी के साथ, तशख्खुस के साथ, अपने शिआर के साथ, इसी तरीके पर हम जिंदगी गुजारेंगे। बसवा कल्याण के लोगों से हमारी गुजारिश है, जमीयत को मजबूत करें, खड़े हो, जिले का ताउन करें, जिला ताल्लुक के ऊपर जिला बड़ा है, जिले के ऊपर सूबा बड़ा है, सूबे के ऊपर मुल्क बड़ा है, सूबा मुल्क को ओवरटेक नहीं करेगा, जिला सूबे को ओवरटेक नहीं करेगा, और ताल्लुका जिले को ओवरटेक नहीं करेगा। बड़े को बड़ा माने, मिलजुल करके काम करें। अल्लाह ताला इन मुंतशिर बातों को जो इस वक्त ज़हन में आई हमने कह दी, इसमें कोई खैर है तो अल्लाह की तरफ से है, कोई शर है तो मेरी तरफ से है, माफ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला मिलजुल करके काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।